Okay, so the next part of the topic, and this is last type. लिमिट्स का ये लास्ट टाइप है. हेडिंग लिखो आप. आई विल एक्सप्लेन. लिमिट्स एट इंफिनिटी. So now we are going to talk about limits at infinity. Now just let me explain the concept by taking down one example. एक फंक्शन ले लेते हैं, उसका एग्जांपल ले लेते हैं लिमिट्स एट इंफिनिटी का मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए. नाउ डू नॉट ड्रॉ और राइट एनीथिंग राइट नाउ. ठीक है. नाउ वी ऑल नो इफ दिस इज अ नंबर लाइन, अगर ये रियल नंबर लाइन है तो दिस इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. ठीक है. अभी नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग. जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होता है, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो नंबर डिक्रीज होता है. ओके. So now limits at infinity means what? Now let us take down an example कि limits at infinity exactly work कैसे होता है. Okay. Now just give me a minute. Okay. Now see over here. Let's take down one example. Just pay attention, students. Now let us take down a function. Do not write down. ये tabular form लिखने की आपको जरूरत नहीं है. ये तो मैं concept आपको explain कर रहा हूँ इसीलिए. Just have a look. Do not write down. Now let us take a function, say 1 by x. Let us take a function 1 by x where x का value is not equal to 0. x का value 0 नहीं होना चाहिए. Okay. Now just let me draw a table. I repeat, ये आपको फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है. कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ. Okay. Now let us see limits at infinity. Now you know that this is the position ये equal to 0 का value है. This is plus infinity. This is plus infinity and this is minus infinity. Now let us see the behavior कि अगर x tending towards plus infinity, अगर x का value plus infinity तक जा रहा है तो function का value कहाँ तक जाएगा. Okay, have a look. Now ये function है, f of x is 1 by x. Now suppose if I put x का value 10, I am going to the right hand side, number increase करते जाऊंगा मैं. ठीक है. Now we can start with 1 also. ऐसा कुछ नहीं है, 10 से start करेंगे. Suppose if I start with 1 से start कर लेते हैं. Suppose if I put x का value 1 in the function, तो x का value 1 डाला function में तो f of x का value भी 1 आएगा. अभी x का value मैं increase करता हूँ. If I take x का value 10, x का value 10 डाला तो f of x का value क्या आएगा? 1 by 10. 1 by 10 means it is nothing but 0.1. Now x का value I will still increase. x का value मैं 1 by 100 कर देता हूँ. x का value 100 करता हूँ तो f of x का value 1 by 100 है तो that is nothing but 0.01. Now I take x का value 1000. x का value 1000 लिया तो f of x का value क्या आएगा? 1 by 1000. 1 by 1000 means 0.001 हो जाएगा. And as I go on increasing, अभी इसको मैंने 10,000 कर दिया. So for example, if I make x का value 10,000, so this will be 0.3 zeros and then a 1. So what do we observe over here? As x is becoming larger and larger, आप observe करो, as x is becoming larger and larger, f of x is coming closer and closer towards 0. I repeat, as x is becoming larger and larger, जैसा x जितना बड़ा हो रहा है उतना ही छोटा fx हो रहा है. Means what is happening? In short, I am writing down. In short, when limit x is tending towards plus infinity, जब x plus infinity की तरफ जा रहा है मतलब नंबर बड़ा हो रहा है, at that time value of the function is tending towards 0. तो ये जब नंबर देखो छोटा हो रहा है, 0 के पास में आ रहा है. So as x is becoming very large, f of x is becoming very smaller and smaller, and in mathematical language we say that the function is tending towards 0. Am I clear with this example? When I say function is tending towards 0, clear है everyone? So please repeat. इसमें देखो ये क्या किया हमने, एक फंक्शन लिया 1 by x. x का value is not equal to 0. तो I am trying to explain x is tending towards plus infinity रहेगा तो क्या होगा. तो आप देखो ये x के जो values है
x के वैल्यूज अपने को किस में डालने के हैं, फंक्शन में। यू हैव डन, फंक्शंस आपने किया हुआ है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो x का वैल्यू हम फंक्शन में डालेंगे, तो x का वैल्यू 1 डाला तो फंक्शन का वैल्यू भी 1 आया। फंक्शन का वैल्यू x का वैल्यू 10 डाला तो 1/10 तो 0.1 आ गया। x का वैल्यू 100 डाला तो 1/100 तो 0.01 आया। 1/1000 x का वैल्यू इधर 1000 डाला तो 1/1000 तो 0.01। तो इसमें क्या हो रहा है आप देखो, ऑब्जर्व करो टेबल में, बोर्ड पे, कि जैसा x बड़ा हो रहा है, as x is becoming larger and larger, at that time f of x is becoming smaller and smaller and it is tending towards 0। आप जितने 0 बढ़ाते जाओगे उतना फंक्शन का वैल्यू 0 के पास में आएगा। तो क्या याद रखना है, that limit x is tending towards plus infinity, 1/x is tending towards 0। Am I clear now? Yes sir। हाँ, अभी दूसरे साइड से देखते हैं। ये प्लस इंफिनिटी की बात हो गई, अभी माइनस इंफिनिटी, फंक्शन यही रखते हैं माइनस इंफिनिटी। फिर देख लो, फिर चाहिए तो आप लिख लेना। अभी x और fx का वैल्यू, वापस से एक टेबल ड्रॉ करता हूँ, x एंड fx का वैल्यू, ठीक है। नाउ लेट मी टेक x का वैल्यू -1। ये भी सपोज मैंने x का वैल्यू यहाँ पे लिया, x इज इक्वल टू -1 यहाँ से स्टार्ट किया, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो x का वैल्यू -1 मैं यहाँ पे डालूंगा, आई पुट x का वैल्यू -1 ओवर हियर, तो f ऑफ x का वैल्यू भी -1 आएगा। नाउ f ऑफ x अपने को माइनस इंफिनिटी की तरफ जाना है, माइनस इंफिनिटी, तो -1 यहाँ पे है। नेक्स्ट वैल्यू मैं लूंगा -10, ठीक है। तो सपोज इफ -1 इज ओवर हियर, ऐसा देखो, -1 यहाँ पे, तो नेक्स्ट वैल्यू -10 यहाँ पे जाएगा। तो x का वैल्यू -10 यहाँ पे डालेगा तो 1/-10, तो इट विल बी -0.1 आएगा। अभी -100 डालते हैं, x का वैल्यू में -100 डालेगा तो f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, -0.01 आएगा। x का वैल्यू -1000 डालेगा तो f ऑफ x का वैल्यू -0.001 आएगा। x का वैल्यू -10,000 डालेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, -0.0001 आएगा। yes or no? So what do we observe over here in this case? What do we observe? That when x is tending towards minus infinity, as x is tending towards minus infinity, ठीक है, f of x is tending towards 0। जैसे ही x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, -1, -10, -100, -1000, एट दैट टाइम f of x तो उतना 0 के पास में आ रहा है ना, पहले -1 था, फिर -0.1 हुआ, -0.1 हुआ, तो ऐसा 0 के पास में आ रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर आल्सो, कि as, अच्छा आई विल यूज सेम ब्लू कलर, 1 मिनट, as limit as x is tending towards minus infinity, as x is tending towards minus infinity, 1/x of that function is again tending towards 0। तो दोनों केस में x tending towards infinity है तो भी 1/x का वैल्यू 0 होता है, x is tending towards minus infinity है तो भी 1/x का वैल्यू 0 होता है। तो अल्टीमेटली इट बिकम्स 0 ओनली, वेदर इट इज प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। ओके, तो ये इसका लिमिट्स एट इंफिनिटी का कंसेप्ट है, लिमिट्स एट इंफिनिटी। चलो नोट डाउन दिस टेबुलर फॉर्म इफ यू वांट। ये टेबुलर फॉर्म आपके रेफरेंस के लिए है, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है। एग्जाम में आपको कोई पूछेगा नहीं कि ये समझाओ मेरे को कैसे आया, नो, दिस इज फॉर योर कंसेप्ट बिल्डिंग दैट यू शुड बी क्लियर विद। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस टेबल। ओके, नाउ व्हेन वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ओके, अपने को जो लिमिट्स है उसमें प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दोनों का वर्किंग नहीं आएगा, सिर्फ प्लस इंफिनिटी का आएगा। तो एक मैं रिजल्ट लिख के देता हूँ, वो भी आप लिख लो, नोट डाउन दिस ऑल्सो फॉर योर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और एक रिजल्ट है वो भी मैं लिख के देता हूँ, वो भी आप लिख लो। ये रिजल्ट हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त लगेगा, इसके ऊपर ही है, दिस इज सेम। सो लेट्स नोट डाउन वन रिजल्ट दैट विल बी रिक्वायर्ड। लिमिट x is tending towards infinity, a upon x raised to k is always equal to 0। ये रिजल्ट आप लिख लो, this will help us while solving the problem। limit x is tending towards infinity, now infinity means दोनों आ गया उसमें, प्लस इंफिनिटी भी आ गया, माइनस इंफिनिटी भी आ गया, in both the cases। so we just write down this way, limit x is tending towards infinity,
a upon x raised to k is always equal to 0. मतलब अपॉन, ये रिजल्ट क्या बोलता है, अपॉन एक्स वाले जितने भी टर्म है, नॉट ओनली 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, 2/x क्यूब, 2/x, 5/x स्क्वायर, जितने भी टर्म्स है ना, और लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, आंसर हमेशा 0 आएगा, ऑलवेज. सो वी हैव जनरलाइज्ड दिस. ये इसका जनरल फॉर्म है, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी a अपॉन x रेज टू k इज इक्वल टू 0. ये सिर्फ आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने आपको समझाया है. क्या याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है. तो ये सिर्फ रिजल्ट भी लिख लोगे तो भी चलेगा. दिस वाज ओनली फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू. ओके, तो अभी यही रिजल्ट मैं ऊपर लिख दूंगा आपके रेफरेंस के लिए. प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एकदम सिंपल है प्रॉब्लम, वी नीड नॉट टू वरी एट ऑल. तो अभी यही रिजल्ट मैं ऊपर लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, डोंट वरी. लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी a upon x raised to k is equal to 0. ये रिजल्ट है. Where k should be greater than 0. k should be positive. k का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द टेक्सचुअल प्रॉब्लम. तो लिखो आप एक्सरसाइज नंबर 7.7. एक्सरसाइज 7.7. ऑब्वियसली हेडिंग सिर्फ एक ही है, पूरे लिमिट्स में एक ही हेडिंग है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग. इवैल्यूएट the following. ठीक है. Now I am going to please keep on preparing limits topic. जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, I'll give you a time, maybe a week or two, और फिर इसके ऊपर हम एक टेस्ट ले लेंगे, and that test will be of 30 to 40 मार्क्स का टेस्ट. पूरा लिमिट्स चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट ले लूंगा मैं. ठीक है, I'll communicate to you when that will be conducted. तो evaluate the following, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली, रोमन क्वेश्चन 3. अगर क्वेश्चन नंबर 3 आ गया तो 1 and 2 अपने आप आ जाएगा आपको. ओके, चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. लिखो फर्स्ट वन. लिमिट x is tending towards infinity. ओके, 3x square plus 4 ब्रैकेट में 4x square minus 6 and 5x square plus 2. Just write down the question, don't worry, I'll explain everything. Upon denominator में है 4x raised to 6 plus 2x raised to 4 minus 1. Okay, this is to be evaluated. Okay, in this limits at infinity में अगर ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो लिमिट्स एट इंफिनिटी के जनरली प्रॉब्लम है, दे डोंट कैरी मोर देन 2 मार्क्स. 2 मार्क्स से ज्यादा के लिए नहीं आते हैं प्रॉब्लम. ठीक है, इफ आप, अच्छा अभी यहाँ पे मैं वर्किंग रूल में पहले बता देता हूँ आपको. लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी दिया है, तो ऑब्वियसली एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी रहेगा, तो एक्स का वैल्यू इंफिनिटी डाल नहीं सकते हम. एक्स का वैल्यू इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है स्टूडेंट्स हमें. नाउ वर्किंग रूल क्या है इसका मैं आपको ओरली बता देता हूँ. नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व द पावर ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर. एक्स का पावर देखने का, न्यूमरेटर में देखने का, डिनोमिनेटर में देखने का. तो डिनोमिनेटर में यू ऑब्जर्व एक्स का पावर इज 6. न्यूमरेटर में टोटल 3 ब्रैकेट है, 1 2 3, देयर आर 3 ब्रैकेट्स. So as you can observe, x square into x square into x square.
Now we can. That the power present in the numerator as well as the power present in the denominator is x raised to 6. अब जो x का हाईएस्ट पावर है, x का हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट? 6. So we will divide numerator as well as denominator by x raised to 6. I repeat, working rule says what? Observe the highest power in the numerator as well as in the denominator. जो भी x का हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करो, ये रूल है. ठीक है, तो राइट डाउन फर्स्ट स्टेप. सॉल्यूशन का कंटिन्यूएशन, राइट डाउन dividing numerator and denominator by x raised to 6. Dividing numerator and denominator by x raised to 6. Initial first example है, so I'll go stepwise as I always do initially. So this is further equal to, देखो x raised to 6 से डिवाइड करना है हमें, ठीक है ना? So read on limit x is tending towards infinity, write down 3x square plus 4 into 4x square minus 6 into 5x square plus 2. ये हमारा न्यूमरेटर था, इसको हमें डिवाइड करना है x raised to 6 से. अब ये वर्किंग रूल है, दिस इज द वर्किंग रूल. Then 4x raised to 6 plus 2x raised to 4 minus 1. This is also divided by x raised to 6. ठीक है, I repeat the procedure. तब तक आप ये लिखते रहो. Observe the power of x present in the numerator and denominator. Total power, ऐसा नहीं कि ये x square है और ये x raised to 6 ना, ऐसा नहीं है. x square into x square into x square. जब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो टोटल पावर तो ऊपर भी x raised to 6 है हाईएस्ट और नीचे भी x raised to 6 है, तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने का. ओके, दैट इज द वर्किंग रूल. ओके, नाउ सी व्हाट विल हैपन. नीचे डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे तो ये जो अपॉन x raised to 6 है, ये तीनों फंक्शन को स्प्लिट हो जाएगा ना. x raised to 6 विल गो टू दिस, गो टू दिस, गो टू दिस. सिमिलरली न्यूमरेटर में ये जो x raised to 6 है, इट इज व्हाट x square into x square into x square ना. तो एक x square इसको जाएगा, एक x square इसको जाएगा, एक x square इसको जाएगा, बिकॉज इट इज इन मल्टीप्लीकेशन. तो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस, दिस इज फर्दर इक्वल टू. अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं, वी कैन स्प्लिट अप लिमिट ऑल्सो. लिमिट भी स्प्लिट कर देते हैं ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को. राइट डाउन लिमिट x is tending towards infinity. अभी आप देखो मैं लिख रहा हूँ. ओके, व्हाट विल हैपन, सी दिस इज 3x square plus 4, ऐसा बड़ा वाला ब्रैकेट डालो. अभी एक x square इसके साथ आ गया इधर, देखो मैं लिख देता हूँ. ये जो x raised to 6 है ना, दिस इज व्हाट x square into x square into x square, ऐसा है ना. देखो यहीं पे समझा रहा हूँ मैं आपको. तो एक x square तो इसके साथ आ गया, दूसरा वाला इसके साथ जाएगा, तो देखो दिस विल बी 4x square minus 6 अपॉन x square, और थर्ड वाला x square इसके साथ जाएगा, तो इट विल बी 5x square plus 2 अपॉन x square, क्लोज द ब्रैकेट. जो x raised to 6 था उसको x square into x square into x square लिखा और तीनों को स्प्लिट कर दिया, तीनों को बांट दिया, स्प्लिट अप अपॉन लिमिट x is tending towards infinity. अभी ये अपॉन x raised to 6 भी स्प्लिट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 4x raised to 6 upon x raised to 6 plus 2x raised to 4 upon x raised to 6 minus 1 upon x raised to 6 and the bracket closes. ये जो अपॉन x raised to 6 है, तीनों फंक्शन को, तीनों टर्म्स को स्प्लिट हो गया वो ऊपर. ठीक है, हैव यू गॉट दिस एवरीवन? नाउ सी व्हाट विल हैपन. ये जो अपॉन वाला x स्क्वायर है, ये अपॉन वाला x स्क्वायर भी इधर स्प्लिट हो जाएगा. अपॉन x स्क्वायर आल्सो स्प्लिट टू ईच ऑफ देम. ओके, so I just rub off this part. I hope everyone must have understood till here. सबको समझ में आ गया प्रोसीजर यहाँ तक? Yes, sir. ओके, ठीक है ना.
ये प्रोसीजर हमें याद रखना है, वेरी सिंपल। एक बार आदत हो जाएगी ना तो इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी ऐसा उसमें डिफरेंट नहीं है करने जैसा, हमेशा यही करना है, डिवाइड बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ओके चलो अभी देखो क्या हो जाएगा, इधर भी ये स्प्लिट हो जाएगा, हियर आल्सो इट स्प्लिट अप। तो थोड़ा अभी अपन डायरेक्ट लिखते हैं, लेट अस राइट डाउन डायरेक्टली, राइट डाउन दिस इज फर्दर इक्वल टू, ओके, लिमिट x is tending towards infinity। अब देखो जब स्प्लिट होगा तो 3x² अपॉन x² इज सिंपली 3 प्लस 4 अपॉन x², स्प्लिट करके लिख रहा हूं मैं, हाँ, तो सेव टाइम मैं स्प्लिट कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ उसको। अच्छा सेकंड वाला ब्रैकेट देखो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ब्रैकेट विल बी 4 माइनस 6/x²। ओके टेल मी व्हाट विल बी द थर्ड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट बताओ क्या होगा मेरे को, स्प्लिट करेंगे तो अपॉन x² स्प्लिट करेंगे तो व्हाट विल बी द थर्ड ब्रैकेट। 5 plus 2 upon x square. वेरी गुड, 5 प्लस 2 अपॉन x² हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है, ब्रैकेट में दिस इज 4 प्लस 2 अपॉन x² माइनस 1 बाय x रेज टू 6। we have simplified these functions excuse me sorry इधर 4 बचा, इधर 2/x² बचा और इधर 1/x6 बचा। तो आफ्टर स्प्लिटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अच्छा अभी देखो रिजल्ट क्या बोलता है, ओवर है, प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट ओवर, प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट ओवर। व्हाट डज द रिजल्ट सेज, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी a अपॉन x रेज टू k इज ऑलवेज 0। तो हमें क्या याद रखना है कि अपॉन x वाले जितने भी टर्म्स है वो सब 0 हो जाते हैं। अभी देखो अपॉन x वाले टर्म्स कौन से हैं, तो ये वाला टर्म है, ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म है, ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट से दैट, रिजल्ट सेज, रिजल्ट बोलता है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी a अपॉन x रेज टू k बिकम्स इक्वल टू 0। तो कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट सेज दैट ना। तो दिस विल बिकम व्हाट, वो भी लिख रहा हूँ मैं, लिखो 3 प्लस 0 into this is 4 minus 0, this is 5 plus 0। अभी फर्स्ट एग्जांपल है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ 3 प्लस 0, नहीं तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट डिनोमिनेटर में देखो 4 प्लस 0 माइनस 0, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि रिजल्ट है। ओके तो आई रब दिस ऑफ, अभी हमने रिजल्ट अप्लाई किया ना, तो रिजल्ट एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो रिटर्न रिजल्ट सिंस लिमिट x is tending towards infinity a upon x raised to k is equal to 0। ये रिजल्ट हमने अप्लाई किया है। तो रिजल्ट क्या बोलता है, जितने भी अपॉन x वाले टर्म्स हैं सब 0 हो जाएंगे, प्रोवाइडेड x का पावर शुड बी पॉजिटिव। ये देखो सब में x का पावर पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, राइट डाउन। अच्छा ये 3 इंटू 4 इंटू 5, ये 4 इसके साथ गया, दिस इज 3 इंटू 4 इंटू 5 divided by 4, 4 गया, 5 3 15 is the answer। So the value of the limit that we have to evaluate is nothing but 15। प्रॉब्लम हो गया खत्म, एकदम सिंपल प्रोसीजर है। See the highest power present in the numerator and present in the denominator, उस पावर से डिवाइड कर देने का, जो भी हाईएस्ट पावर है, सिंप्लीफाई करने का, रिजल्ट अप्लाई करने का, अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। ओके प्लीज नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड, आई होप सबको समझ में आ गया ये प्रॉब्लम अभी कैसे करना है, ठीक है ना। Yes, sir. ओके वेरी गुड, एक दो एग्जांपल करेंगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा, आप खुद कर लोगे बाकी के एग्जांपल। ओके दैट्स सिंपल दे आर। चलो तो आई रब दिस ऑफ, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन सेम रोमन क्वेश्चन 3 में दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ओके। अभी आपको ये प्रॉब्लम बड़ा लग रहा होगा बट सिंपल है, 2 मार्क का ही प्रॉब्लम है, ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, वो तो फर्स्ट एग्जांपल था
इसीलिए मैंने हर एक स्टेप आपको करके बताया, अदरवाइज इतने स्टेप्स की जरूरत ही नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट, रोमन क्वेश्चन 3, लेट अस डू एग्जांपल नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। देखो, लिमिट x is tending towards infinity at 2x minus 1, okay, to the power 20, 2x minus 1 to the power 20 दिया है, into 3x minus 1 to the power 30 whole upon in the denominator this is 2x plus 1 to the power 50। एकदम सिंपल भी क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूँ, एकदम सिंपल तो आप खुद भी कर सकते हो। तो इफ वी नो क्वेश्चन नंबर 3, अगर रोमन क्वेश्चन 3 आ गया ना आपको एक्सरसाइज में, तो 1 और 2 आप खुद कर सकते हो, कितने सिंपल है बाकी के प्रॉब्लम्स। ओके चलो, नाउ observe and can anyone tell me what is the highest power of x in the numerator and denominator? 50। वेरी गुड, एब्सोल्युटली। ये देखो x का पावर यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 है, तो 20 प्लस 30 50। तो चलो राइट डाउन, डिवाइडिंग, देखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज टू 50, x रेज टू 50 से डिवाइड करना है। अभी थोड़ा हम टाइम सेव करने के लिए स्टेप्स को स्किप करेंगे, x रेज टू 50 से डिवाइड करना है। Write down, this will be further equal to, okay, लिखो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x is tending towards infinity। अब यहाँ पे टाइम सेव करते हैं अपन, चलो 2x minus 1 to the power 20 है, ऐसा लिखो आप, इनटू यहाँ पे 3x minus 1 to the power 30 है, ठीक है ना। अभी ये x रेज टू 50 से डिवाइड होगा, तो x रेज टू 20 तो इसके साथ जाएगा, x रेज टू 30 इसके साथ जाएगा। We are dividing numerator and denominator by x raised to 50। अब देखो प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको स्टेप करके बताया, अब हम डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा ऐसा भी आना चाहिए हमें। तो x रेज टू 50, 20 इधर, 30 उधर गया, इधर भी, इधर तो डायरेक्ट 50 लिखेंगे, तो दिस इज 2x plus 1 whole to the power 50 and this is divided by x to the power 50 and the bracket closes, ठीक है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, x रेज टू 50 से डिवाइड किया और हमने स्प्लिट भी कर दिया, डिवाइड भी किया, स्प्लिट भी किया, टाइम सेव हो जाएगा। क्या मतलब है बार बार स्टेप इंक्रीज करके। अब नाउ दिस इज होल रेज टू 20, तो लिखो नेक्स्ट स्टेप, दिस इज फर्दर इक्वल टू, अच्छा अभी हम क्या करते हैं, लिमिट स्प्लिट कर देते हैं, लिमिट भी स्प्लिट करते हैं। तो राइट ऑन, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो 2x minus 1 whole upon x and this is whole to the power 20। देखो ये दोनों टर्म्स, ये रेज टू 20 और ये भी रेज टू 20 है, तो ये होल रेज टू 20 हो गया, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x minus 1 अपॉन x होल रेज टू 30 हो जाएगा, प्लीज चेक। और ये क्या हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी, लिमिट तो स्प्लिट होगा, इसको भी जाएगा। अच्छा लेट अस क्लोज दिस स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे स्टार्ट किया था तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दो आप। तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, तो 2x plus 1 अपॉन x एंड दिस इज होल रेज टू 50। प्लीज चेक द स्टेप्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, एकदम सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें करने जैसा। नाउ लेट अस स्प्लिट अप, अपॉन x स्प्लिट करो, पावर के अंदर अंदर अपॉन x स्प्लिट हो जाएगा, so write down what will this become, so this will be further equal to, okay, numerator में limit x is tending towards infinity, ये क्या हो जाएगा, अपॉन x स्प्लिट करो, थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, तो 2x अपॉन x is 2, so this will be 2 minus 1 by x to the power 20। देखो आप, 2 minus 1 by x to the power 20, इधर आएगा 3 minus 1 by x to the power 30,
और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो इट इज लिमिट x is tending towards infinity, this will be 2 plus 1 by x to the power 50. This is what we'll be getting. Okay, now let us apply the result. अभी रिजल्ट क्या बोलता है, जितने भी अपॉन एक्स वाले टर्म्स है सब जीरो हो जाएंगे, ऑल अपॉन एक्स वाले जितने भी टर्म्स है वो सब जीरो हो जाएंगे। तो अपॉन एक्स वाले टर्म्स कौन से है, चेक दिस आउट, ये 1 by x 1 by x 1 by x, ये सब जीरो हो जाएगा। हाँ, अभी वो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया। तो व्हाट इज लेफ्ट आउट, तो लिखो देयरफॉर L is equal to, this is 2 raised to 30, this is 3 raised to 30 remaining, sorry 2 raised to 20 है, 2 raised to 20 है, 3 raised to 30 है, और ये 2 raised to 50 है। 2 raised to 20, 3 raised to 30 and 2 raised to 50। अब ये 2 का पावर बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस कैन बी सिंप्लीफाइड, सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 raised to 30 अपॉन 2 raised to 30। So value of L इसको, this can be further written as 3 by 2 whole raised to 30. That's it, problem is over. This is power 20, 30, 50. ये simplify okay, so this is 3 by 2 raised to 30 is the final answer. Now it is not expected कि आप solve करो 3 raised to 30, बहुत बड़ा power है। हाँ, 3 raised to 5 होता, 6 होता तो हम solve करके फिर भी आंसर लिख सकते थे। Now we need not to solve 3 raised to 30 and all that. This itself is the final answer. Problem is over. So it's, I think so examples are simple. They are not difficult. X का highest power observe करने का, उससे divide कर देने का, simplify करके result apply करके, you get the answer. Please check. Any doubt in this? You can ask. I hope this is understood, everyone. Keshav, Akash. Yes, sir. Okay. Chinmay, Yes, Divyata, sir. Himanshu, Krishna. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Very good. Omkar, Yes, Rohan, sir. Saili, Sakshi, Yes, sir. everyone. Yes, sir. Okay. Yeah. Thank you for your response, students.